Shah invokes Ambedkar. Congress sees red. मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। Opposition protest outside and inside Parliament. अमित शाह, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जय भीम। Kharge demands Shah's resignation. यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। Prime Minister lists sins of Congress against Ambedkar. लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए भी Big showdown over Ambedkar. Top focus on 5 Live. The fiery debate in the parliament over Dr. B.R. Ambedkar. We're looking at both sides, the Congress and the BJP, slamming one another on who's insulted Dr. B.R. Ambedkar more. I'm Nabila Jamal. You're watching 5 Live. All right, we have update and development on the Congress and their protest against Home Minister Amit Shah for quote-unquote insulting Dr. B.R. Ambedkar. The Congress now says they are going to remove Amit Shah, in fact, seeking a removal of Amit Shah, expressing to the Prime Minister that Amit Shah must resign and that he must be removed from the cabinet. The Congress demands Amit Shah's resignation, asking for his apology first by midnight or resign as a union minister. Now, Kharge demands that Amit Shah must resign within tonight, latest by tonight. If that doesn't happen, then he must be sacked as the union minister. Remove Amit Shah from the cabinet at the earliest if he does not apologize by tonight. Mallikarjun Kharge is saying that the Prime Minister is trying to shield Amit Shah despite the insult to Dr. B.R. Ambedkar. The Congress held a presser just a few moments ago. I'm going to take you through a snippet of what Mallikarjun Kharge said, pointing fingers straight at the Home Minister Amit Shah. Listening. जो व्यक्ति ऐसी बातें बोल रहा है और सारे देश में टीवी पे ये बातें लाइव चल रही है, उनको प्रधानमंत्री बुला के टोकने के बजाय, अरे भाई ये ठीक नहीं है, बाबा साहब के बारे में तो हम खूब तारीफ करें, बहुत सी बातें बोले, लेकिन आपने क्यों ऐसा बोला? जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते, स्वर्ग या नर्क की बात उन्होंने कभी कही नहीं, वो बातों को लेकर उनके होम मिनिस्टर बात करते हैं, तो मोदी साहब उनको डिफेंड करने के लिए अब 6 ट्वीट उन्होंने किया, 6-7 मुझे मालूम, 6 ट्वीट्स उन्होंने किया। क्या जरूरत थी? अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था, ये नहीं चलेगा। लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं। Let me bring in our correspondent Rahul Gautam to give us a little more on that. Rahul, a quick take from you on what Mallikarjun Kharge has said, giving an ultimatum to the Home Minister Amit Shah, asking for him to apologize by tonight, if not tender his resignation. In fact, he's made an appeal to Prime Minister Modi as well to sack him from the cabinet. Well, the line of attack is pretty clear and pretty evident that Congress party is not going to let go this opportunity to corner the government on the issue of B.R. Ambedkar. Remember, they had recently contested entire Lok Sabha elections on the very name of Constitution. They've been speaking about reservation, social justice, and obviously about B.R. Ambedkar. So this remark, many believe in Congress party, has come as an apt opportunity, and you may expect that Congress party will be escalating
this matter and will be increasing heat on this issue. Today, Mallikarjun Kharge held this press conference, asked for resignation of Amit Shah. Tomorrow, we've been told that all the state units of Congress party are going to state demonstrations all across the country. So pretty clear that Congress party is not going to let go of this opportunity. Obviously, they were also trying to drag Prime Minister Narendra Modi in this entire controversy, saying that Prime Minister should have stopped Amit Shah or should have rebuked him on this issue. But rather rebuking on this issue, in fact, Prime Minister defended what Amit Shah has said in Rajya Sabha, and in fact, he tweeted 6 times on this issue, and not just a word of condemning about this remark. In fact, obviously, this is the strategy of Congress party to attack both Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi, and would obviously try to create this narrative that how this government has been, anti-Dalit and has been making a mockery of one of the biggest icons of Dalits. So clearly, it seems that they're going to up the ante in coming days, and you can expect that this issue, Congress party would want to remain alive so that they can keep on attacking BJP in coming days. And obviously, it seems that this is the latest flashpoint between BJP and Congress in both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Today, we saw protests happening outside Lok Sabha. In fact, ruckus was created inside house as well. So clearly, Congress is pretty, convinced that BJP is on back foot, and therefore they would increase the heat on this issue in coming days. We also saw a pointed attack that came in from the BJP side, with Prime Minister Modi himself listing out in a series of tweets on why the BJP feels the Congress has insulted B.R. Ambedkar over the decades. And was the Congress expecting this? Have they responded to all those jibes on why no Bharat Ratna for B.R. Ambedkar, on why elections were fought twice against him, on why a portrait of B.R. Ambedkar didn't find a place in the Parliament Hall under the Congress? Has there been any responses of those attacks that have come in from the BJP side? Well, when Mallikarjun Kharge started this press conference, he said that, many in BJP distorted the facts, and in fact, he was of course, pointing towards Amit Shah, saying that all these remarks or all these allegations that were leveled against Congress are absolutely bogus. He said that I have already rebutted all these allegations on the floor of the House. When we asked, when the press conference got over, and we asked him that at 5:30, Amit Shah, Home Minister, is also going to address a press conference, and in all likelihood is going to speak on this ongoing controversy. To which he said that I'm going to, answer all these questions that are raised by BJP tomorrow inside the House. So obviously, as far as Congress is concerned, they have already rejected all the criticism, saying that this is nothing but a divergent tactic on the BJP, and rather they are blaming BJP for disrespecting and insulting Ambedkar. As I was telling you earlier also, that this is all part of narrative of the Congress party: social justice, B.R. Ambedkar, reservation, constitution. So obviously this suits Congress, and they believe, and many in party believe, that at least on this issue, the BJP is on back foot, and they would try to gain maximum mileage out of this issue, and would obviously try to garner more support from India Alliance parties like TMC, Aam Aadmi Party, and would try to and that's precisely what we saw. Rahul Gautam, stay with us. I'm going to quickly cut across to the visuals that came in a few moments ago, with Aam Aadmi Party holding a huge protest right outside Home Minister Amit Shah's residence over what Amit Shah said. The Aam Aadmi Party now slamming Amit Shah for insulting Dr. B.R. Ambedkar. They've launched this massive stir across India, and of course this particularly AAP protest outside Amit Shah's residence at this point escalates. Congress also holding a protest outside the Parliament. Opposition parties holding Ambedkar's portraits. Aam Aadmi Party there right now are right in front of Amit Shah's residence, demanding Home Minister's resignation. All right, here you have images of Congress in Kolkata. Police detaining many of those protesters. Many protesters turning unruly. Of course, this is creating chaos in many parts. This is the Congress's decision to launch a nationwide protest, and we're looking at images of Congress leaders holding up posters of B.R. Ambedkar. All right, we're going to
Parliament proceedings earlier today that were disrupted as the Congress held massive protest against the Union Home Minister Amit Shah over his remarks on B.R. Ambedkar during his address to the Rajya Sabha. While the Congress sought Home Minister's resignation and an apology, BJP accusing the opposition party of playing cheap tricks. Listen in. शासन की अवधि, राष्ट्रपति शासन की अवधि। Massive uproar in Parliament over Union Home Minister Amit Shah's speech on Constitution in the Rajya Sabha. मैं समझ रहा हूं क्यों गुस्सा आ रहा है। As Amit Shah attacked the Nehru Gandhi family and accused the Congress of ignoring Babasaheb Bhimrao Ambedkar, a comment made during the speech has sparked a firestorm. अभिमान और अहंकार को चूर-चूर करने का काम इस देश की जनता ने किया है। The Congress on Wednesday tweeted a short clip from Amit Shah's speech to claim that the Home Minister had insulted Babasaheb Ambedkar, who headed the committee that drafted the Constitution. When we look at the Constitution, मान्यवर अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है। एक श्री B.C. रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। The opposition stormed into the well of the House and Lok Sabha, forcing an adjournment. आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। को लेकर के किसी वक्त तक को आप The Rajya Sabha saw angry exchanges between the government and the opposition. आपने संविधान का अपमान सभापति महोदय जी खड़गे जी फिर से मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त तक को आप बोल नहीं सकते हैं। Prime Minister Narendra Modi stepped in to defend the Home Minister. The Prime Minister said Congress and the Congress ecosystem was spreading lies after having insulted Babasaheb Ambedkar repeatedly. He added Jawaharlal Nehru campaigned against Ambedkar in elections and denied a Bharat Ratna to the father of the Constitution. Modi insisted the Congress denied a place for Babasaheb Ambedkar's portrait in Parliament. Opposition leaders staged protests holding photographs of Babasaheb Ambedkar outside Parliament. The Congress demanded an apology from the Home Minister. ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। The rise of Babasaheb Ambedkar as an icon among the underprivileged classes over decades has meant all political parties are now staking claim to his legacy. Bureau Report, India Today. We know today was big showdown over B.R. Ambedkar. There were allegations and counter-allegations. I'm going to take you through exactly what the Congress said and what the BJP said. Let's begin with the Congress. The Congress says the BJP is only insulting B.R. Ambedkar. And then the BJP
encounter says that the Congress ecosystem is trying to spread lies. Now, let me take you through some of the quotes. Congress says the BJP RSS is against the tricolor, which is against what B.R. Ambedkar believed, while the BJP says the Congress repeatedly insulted B.R. Ambedkar, first by not giving him Bharat Ratna and then gone on to list many times that they feel that they've disrespected him. Congress says Amit Shah must apologize or resign, while the BJP says this is a bid to obliterate Ambedkar's legacy entirely. Of course, at this point, Home Minister Amit Shah has not spoken about what has happened. In fact, Prime Minister Modi stuck up for him, putting out at least 6 tweets that he posted on the X platform. But let me take you through exactly what Home Minister Amit Shah had said that led to this massive uproar on Ambedkar's legacy. Have a listen. मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में आम्बेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो आम्बेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक आम्बेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। आम्बेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर आम्बेडकर के जन्मस्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं, मान्यवर, मैं मानता हूं कि आम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। Now you have TDK chief Thalapathy Vijay, who's jumped into this controversy, attacking Home Minister Amit Shah. You're looking at Vijay saying that he will not accept the insult to Dr. B.R. Ambedkar. He calls B.R. Ambedkar our icon. Won't accept this kind of insult to our icon. Remove Amit Shah from the cabinet. Thalapathy Vijay, who jumps in, taking up, in fact, on the lines of what Congress is saying, asking for the same. Amit Shah's resignation on this matter, saying this is absolute insult what he's done by saying what he said to our icon, Dr. B.R. Ambedkar. He asks for Amit Shah to be removed from the cabinet. All right, now we also have the BJP and the opposition sparring over Ambedkar. Let's listen in to all the reactions that came in, flooded in through the day on this controversy. Let's listen in. मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के और 2 बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर, उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं। तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति, कोई सम्मान नहीं है। बाबा
why Congress could not continue the legacy of Ambedkar? Because Congress party, Nehru ji, they hated Ambedkar ji because Ambedkar ji was the most educated, learned and intellectual person of that time. So don't play politics in the name of Ambedkar ji. He is reverend to us. He is beyond politics. Don't play politics in the name of Babasaheb Bhimrao Ambedkar. We respect him. We always feel that Babasaheb Bhimrao Ambedkar must be respected by all. Congress will have to tender apology to the nation. Not only now what they are doing, but what they have been doing to insult B.R. Ambedkar ji. जो अंबेडकर जी की सोच थी कि SC, ST, OBC को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है कि कैसे कांग्रेस सदा SC, ST, OBC विरोधी रही। बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों घर में रोशनी दिखाने का काम किया, संविधान में वो वंचित पिछड़े लोगों को स्थान दिया, महत्वपूर्ण स्थान दिया। आप उनके बारे में इस डिसरिस्पेक्ट से बात करेंगे, ये आपके मन में जो है उनके खिलाफ वो दर्शाता है। संविधान के खिलाफ थे, पर संविधान से ज्यादा अब ये समझ में आ गया है क्योंकि ये संविधान अंबेडकर जी का बनाया हुआ है। अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए, उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, जिसके तहत संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया। कल जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब का मजाक उड़ाया सदन में, गृह मंत्री की ये मानसिकता है बाबा साहब को लेकर, इतनी घृणा इनके मन में भरी हुई है दलितों के प्रति, देश के दलितों के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति। तो मुझे लगता है कि इससे पूरा देश आहत है और देश के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनको अपने पद पे बने रहने का हक नहीं है। All right, shifting my focus here to Priyanka Gandhi versus Yogi Adityanath. After Priyanka Gandhi held up a Palestine bag in the parliament, a pro-Palestine bag showing solidarity, you had Yogi Adityanath who slammed her. Priyanka Gandhi has come down heavily on Yogi. In fact, let me tell you what Yogi said. Yogi said while India has sent scores of people to work in Israel, it's tragic that Priyanka Gandhi has condemned Israel so openly. Yogi says after he in fact accused her of basically disrespecting the Indians who are currently working in Israel as well. So Priyanka in response says that throwing the youth into a war zone like Israel while the Israel-Palestine war was on is really nothing to be proud of, saying that in fact the government should have given Indians jobs locally and not throw them into the war zone. So there's really nothing that one should be proud of. BJP now up in arms after Priyanka protested with a bag in the parliament. First the Palestine bag and then the bag that read "Save Bangladeshi Hindus and Christians." Mocking Priyanka, BJP netas called Priyanka as naive, saying that the nation doesn't run with bags, it runs with Modi. BJP has also said that Priyanka thinks of the parliament as a place for her gimmick. प्रियंका वडेरा जी का स्टेप पाकिस्तान को अच्छा लगता है, भारत को नहीं। उनके जो भी कदम हैं वो पाकिस्तान को अच्छे लग रहे हैं। भारत को अच्छे लगने वाले कदम कम उठाएगी कांग्रेस। पाकिस्तान वो जो आतंक का बहुत बड़ा चारागाह बना हुआ है, आतंकवादियों को खुलेआम समर्थन दे रहे हैं वो लोग, आतंकवादियों के प्रशिक्षण चल रहे हैं जिस देश में, तो यही बताना काफ़ी है कि कांग्रेस अब भारत लिख करके नहीं घूमती है, वो फिलिस्तीन लिख के घूमेगी, आतंकवादियों का समर्थन करेगी। देश की जनता देख रही है और समय आने पे न्याय कर रही है। प्रियंका जी की भूमिका अभी थोड़ा सा नादान है और इसलिए कब क्या करना ये अभी उनको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
और अपने पूर्वजों की नकल नहीं करें, नई सोच के साथ राजनीति में उतरें। पूर्वजों ने तुष्टीकरण की नीति के आधार पर देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। कम से कम प्रियंका जी से अपेक्षा कि वो नहीं करेंगे ऐसे। नहीं, देखिए वो तो अटल बिहारी जी भी उस टाइम पे पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट रहे थे उनके साथ उनकी फ़ोटो है। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मामला है। हमारा कुछ भी स्टैंड हो सकता है वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर, और इसमें हर आदमी का अपना एक ओपिनियन होता है। तो उस हिसाब से इंडिया खुद पैलेस्टीन को वर्ल्ड फोरम पे सपोर्ट करती है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके बयान में कोई भी तुकबाजी है। In big news today, you had Nirmala Sitharaman underscoring how properties worth nearly 22,280 crores have been recovered from fugitives like Vijay Mallya, Mehul Choksi, Nirav Modi and many more. The Union Finance Minister, speaking in the Parliament today, revealed how ED had successfully restored these assets worth crores and returned to rightful victims and claimants. Talking about measures to spread awareness among taxpayers for the disclosure of foreign assets and income, she mentioned that the number of such assessees rose to over 2 lakhs in the current assessment year of 24-25 compared to just over 60,000 in 2021 to 22. Let's have a listen. ED has successfully restored properties value at least 22,280 crores, and I'm only talking of the major cases. We all question about ED. The return and also the money which have been claimed by the ED is this one. Restored properties of 22,280 crores in major cases. And I would like to list the number of cases, sir. Vijay Mallya case, 14,131.6 crore, complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. Well, this is a huge move and massive success for the Enforcement Directorate by repossessing that money that was looted by these fugitives, economic offenders who still are at large. The government is, of course, attempting to bring them back so they face the law. But if I could break it down for you, the kind of money that's been brought back by the Enforcement Directorate so far, out of the 22,000 odd crores that have been recovered, Vijay Mallya's alone stands at 14,131 crores that they've recovered from his companies. And then you have Nirav Modi with 1,052.5 crores that's been recovered from him, and Mehul Choksi with about 2,565.9 crores that's been recovered from him. Of course, Nirav Modi and Mehul Choksi both are currently on the run. They're fugitives. Indian government, we hear, are doing all that they can to bring them back so that they face the law soon enough. Let me bring in Munish Pandey, joining us live for more on that. He tracks very closely the agencies. Munish, it's a big success indeed for the Enforcement Directorate. We heard Finance Minister Nirmala Sitharaman speaking elaborately about this success in the Lok Sabha today. But of course, a big question on when and how will these men be brought back to the country so they are reprimanded for what happened? Well, Nabila, this is a remarkable achievement by the Enforcement Directorate. Remember, since the time Prime Minister Narendra Modi made a statement that गरीबों का पैसा गरीबों को वापस आना चाहिए, the Enforcement Directorate started working in that direction, especially when Rahul Navin took charge as a ED director a couple of months back. Now, as far as Enforcement Directorate strategy is concerned, it is very clear. They are identifying the properties which has been looted by these scamsters, and after identifying the properties, they are now monetizing it, which means that the money which is in the form of movable and immovable properties, that money is now being monetized and going back to the banks. The banks will now be responsible for, giving back giving back that money to rightful victims in most of these cases. As of now, the amount stands more than 22,000 crore. But we have been given to understand is that next few weeks, the amount will be reaching 30,000 crore because ED is in process of monetizing few more properties. As far as the big cases are concerned, remember there is Vijay Mallya case in which more than 14,000 crore has been monetized. In case of Nirav Modi and Mehul Choksi, more than 3,000 crore have been monetized. In case of Bhushan Steel, it is more than
4,000 crore. So there are multiple cases, almost dozen cases in which monetization has happened, which means the money has been restored and now the money can be given back to the victims. But there are complicated cases like Rose Valley case in West Bengal, in which the monetization process started. More than 90 crore has been monetized, and in coming few weeks it will reach I'll have more to cut than you short. I'm going to quickly cut across to Home Minister Amit Shah, who's now speaking in response to all the attacks on him with regards to Dr. B.R. Ambedkar's insult. This will be his response to the big showdown that the Congress has now launched across the country. He's not spoken so far. This will be him breaking his silence in a first post that comment where he said it's fashionable to evoke B.R. Ambedkar, which the Congress has taken offense to. You have multiple opposition parties, including the Aam Aadmi Party. Also, Tamil Nadu's TVK's Thalapathy Vijay also jumping in, demanding Amit Shah's resignation. और एवं देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हम लोगों के मध्य हैं। संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी हम लोगों के मध्य हैं। देश के वाणिज्य मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी हम लोगों के मध्य हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं आदरणीय अमित शाह जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। विगत सप्ताह में संसद में लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा दोनों जगह संविधान को स्वीकार किए हुए 75 साल के मौके पर संविधान की रचना, संविधान निर्माताओं का योगदान और संविधान में प्रस्तावित किए गए आदर्शों पर एक गौरवमयी चर्चा का आयोजन संसद के द्वारा किया गया। वो चर्चा में 75 साल की देश की गौरव यात्रा, विकास यात्रा और उपलब्धियों की भी चर्चा होनी थी। ये तो स्वाभाविक है कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष होते हैं तो हर मुद्दे पर लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, दलों का नजरिया अलग अलग होता है, वक्ताओं का नजरिया अलग अलग होता है। मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया
तब कल से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। संसद में जब चर्चा हो रही थी, ये सिद्ध हो गया कि बाबा साहेब आंबेडकर का कांग्रेस ने किस तरह से पुरजोश विरोध किया था। बाबा साहब के न रहने के बाद भी किस प्रकार से कांग्रेस ने बाबा साहब को हास्य पर धकेलने का प्रयास किया। जब संविधान सभा अपना काम कर चुकी, चुनाव हुआ 1951-52 में और 54 में, दोनों बार कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि फ्रेंडली चुनाव होता है, स्पिरिट वाला चुनाव होता है, ऐसा चुनाव भी नहीं था। विशेष प्रयास किया गया और वो उनकी हार को सुनिश्चित किया गया। जहां तक भारत रत्न देने का सवाल है, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिए हैं। 55 में नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, 71 में इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया और 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार थी। 1990 तक कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को भारत रत्न न मिले, इसका बड़े जतन से प्रयास करती रही। यहां तक कि बाबा साहब की जयंती को भी, 100वीं जयंती को भी मनाने का मना ही कर दिया गया। नेहरू जी की आंबेडकर जी के प्रति नफरत जग जाहिर है। नेहरू जी की खुद की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेकंड सीरीज वॉल्यूम 16, इसके भाग 2 की पृष्ठ संख्या 532 पर एक पत्र का उल्लेख है। जब बीसी राव ने नेहरू जी को पत्र लिखकर कहा कि आंबेडकर जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जाने का मन बना रहे हैं, तब नेहरू जी का ये जवाब था, आंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आंबेडकर जी के महान योगदान का मूल्यांकन जवाहरलाल जी किस तरह से करते थे, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जब पंडित जी की एक और किताब को पढ़ते हैं, लेटर टू चीफ मिनिस्टर में एक उल्लेख है, बंबई के मेयर ने एक पत्र में बाबा साहब के आंबेडकर के जन्मस्थान मऊ में उनका स्मारक बनाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया। 18 जून 1959 को पंडित जी ने कहा, सरकार के लिए स्मारक स्थापित करना बिल्कुल सामान्य बात नहीं होगी। आमतौर पर स्मारक निजी पहल से किया जाता है। अपने परिवार के चाहे कोई भी सदस्य हो, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो, कई सारे लोगों के लाखों स्मारक देश के अंदर बनाने वाले परिवार के मुखिया कहते हैं कि आमतौर पर निजी पहल पर स्मारक बनाया जाता है, क्योंकि ये स्मारक B.R. आंबेडकर जी का था। मित्रों, जब एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, एक सर्वदलीय मंत्रिमंडल, पहली देश की कैबिनेट बनी जिसमें बाबा साहेब आंबेडकर भी सदस्य थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में एक और उल्लेख आता है, नेहरू जी के आश्वासन के बावजूद आंबेडकर जी को कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया और ये स्पष्ट इसके अंदर उल्लेख है कि सरकार की नीतियों, विशेषकर विदेश, रक्षा और अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी हुई नीतियां और 370 के खिलाफ आंबेडकर जी थे। जब एक और कांग्रेस पार्टी है, बाबा साहेब आंबेडकर का कोई स्मारक जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बड़ा नहीं बना।
जहां जहां विपक्ष की सरकारें आती गई, स्मारक बनते गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब के जीवन के संबंधित पंच तीर्थ का विकास किया। मध्य प्रदेश में महू, लंदन में वो स्थान जहां बाबा साहब पढ़ते थे, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थान और महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित चैत्य भूमि का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। 19 नवंबर 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी की। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महापरिनिर्वाण स्थल पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया, जो लगभग 2 एकड़ में फैला है। मित्रों, मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है, प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन्होंने जिस प्रकार से आरक्षण को भी विरोध किया, वो भी हम सब जानते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग, काका साहेब कालेलकर आयोग 53 में बना, 55 में रिपोर्ट आई, आज तक वो रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। 31 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग बना मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। 80 में इंदिरा जी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब गैर कांग्रेसी सरकार आई, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। उस वक्त राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे और जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, प्रस्ताव संसद में आया, राजीव जी ने अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण ओबीसी के आरक्षण का विरोध करने के लिए किया। आज मैं फिर से एक बार आग्रह के साथ मीडिया को बताना चाहता हूं, सच्चाई को जनता तक पहुंचाना चाहिए। मेरी पूरी बात बहुत स्पष्टता के साथ, कोई कंफ्यूजन के बगैर राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है। आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ट्वीट कर भी इस सत्य को लोगों के बीच में पहुंचाया है। और जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब का अपमान किया, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब के सिद्धांतों को दरकिनार किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को भी कहना चाहता हूं, खड़गे साहब, आपका तो कम से कम दायित्व बनता है, क्योंकि आप उस वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब आंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख है
कि आप भी राहुल गांधी जी के दबाव में इसके अंदर शामिल हुए हो। मित्रों, आज जब हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, कांग्रेस के पास इस संविधान के ऊपर की चर्चा में बाबा साहेब आंबेडकर विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। संविधान विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस सावरकर विरोधी है, इसका भी कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, उसका भी कोई जवाब नहीं बचा। आपातकाल का पाप कांग्रेस के ही समय में हुआ, इसका भी कोई जवाब नहीं बचा। नारी सम्मान का विरोध भी कांग्रेस ने ही किया, वो प्रस्तापित हो गया। न्यायपालिका का अपमान ही कांग्रेस ने ही किया, वो भी प्रस्तापित हो गया। भारत की भूमि को भी संविधान को दरकिनार कर विदेश को सौंपने का पाप भी कांग्रेस ने ही किया, ये भी प्रस्तापित हो गया। तब फिर से एक बार चिर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं, जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में, देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते जिससे बाबा साहब का अपमान हो पाए। और मैं फिर से एक बार कांग्रेस के ये कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और जो संविधान पर दोनों सदनों में चर्चा हुई, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ओर से चर्चा का स्तर मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया गया था, विषय पर बोलने का आग्रह किया गया था और तथ्य के साथ बोलने का आग्रह भी हमारे सारे वक्ताओं ने किया था। वो सारे प्रयास पर कांग्रेस ने पानी फिरा है और मैं मानता हूं कि देश की जनता इसके इस प्रयास को भी जानती है, उनकी मानसिकता को भी जानती है और उनकी कार्य संस्कृति को भी जानती है। धन्यवाद। रविंदर जी, देखिए, मैं पार्लियामेंट के बारे में बाहर जवाब नहीं दे सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके सारे लीगल ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी तरासेगी। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं, वो सारी संभावनाओं को तराशकर भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। आनंद पांडे जी। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। नीरज जी, एबीपी न्यूज। नीरज जी, आप भूल रहे हैं बीच में हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हो गया है और उन्होंने लहराया हुआ संविधान अंदर से कोरा था। संविधान प्रेम इनका कितना खोखला है वो एक्सपोज हो चुके हैं। एक झूठ बार बार नहीं चल सकता है, अंततोगत्वा सत्य जनता तक पहुंचता ही है। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक।
ने सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्भ से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास करें। शैलेंद्र जी, मुझे लगता है आप मेरी प्रेस को अच्छे से कवर करिए, कुछ नहीं होगा। प्रज्ञा कौशिक, उनका इंटेंशन क्या है इसके डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जानता हूं कि अब कांग्रेस को जनता जान गई है। एक ही प्रकार से झूठ और भ्रम बार बार जनता मानती नहीं है। विकास भदौरिया, भाई आपका सवाल गलत जगह पे, ये कांग्रेस कार्यालय में पूछने का सवाल है, मुझे क्यों पूछ रहे हो? यतेंद्र जी, यतेंद्र, देखिए इनकी भ्रांति है, प्रधानमंत्री सत्य के फेवर में बोले हैं। मोहित भट्ट, देखिए सत्य को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। हमारी बात में, हमारे मुद्दों के साथ सत्य स्वयं खड़ा है। सत्य सबके साथ सत्य ही रहता है, कितने भी लोग साथ में आए, इससे सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण मोहन शर्मा, चलो कम से कम मेरे कारण अरविंद केजरीवाल जी संविधान का और बाबा साहब का सम्मान करने लगे, वो आनंद का विषय है। संजय जी, शायद आप भूल रहे हैं कि राज्यसभा में श्री राहुल गांधी नहीं बैठते हैं। राहुल गांधी राज्यसभा लोकसभा में बैठते हैं। आमोद जी, मुझे क्या मालूम, हो तो स्पीकर साहब ने तय करना पड़ेगा, सभापति जी तय करेंगे। मोहित अमित, मुझे लगता है कि खड़गे जी ने आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। वो जो कर रहे हैं इसके प्रति गुस्सा है या मेरे बयान के प्रति, वो उनको थोड़े दिन में मालूम पड़ जाएगा। आप पूछना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि जनता के फैसले लगातार बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं।
इसका उनके पास ना कोई काट है ना कोई तोड़ है। इसलिए जनता के फैसले के बाद ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जनता के फैसले के बाद खुशफहमी में रहते हैं कि हारने के बाद भी कि हम जीते हैं, और जनता के फैसले के बाद भी फिर से एक बार भ्रांति फैलाने का प्रयास करते हैं, परंतु जनता सब जानती है। अंतिम सवाल रविकांत जी। सर, पूरे सत्र के दौरान देखा गया है कि इंडिया अलायंस सभी मुद्दों पर एकजुट नहीं था, लेकिन कल के भाषण के आपके भाषण के बाद उनको लगता है कि एक मुद्दा मिल गया, आपके भाषण की वजह से सभी एकजुट होकर आप पर हमला कर रहे हैं, तो आपने यूनाइट कर दिया उनको। ऐसा नहीं है। जब एक प्रकार का नैरेटिव खड़ा होने का, गलत नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास होता है, तब शुरू में नैरेटिव गलत है या सही वो समझे बगैर काफी लोग साथ देते हैं। जब जनता का रिएक्शन आता है तब कुछ स्थिति अलग होती है। आप थोड़ी राह देखिए। आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत कम समय में आए, आपका आभार। धन्यवाद।